Very good afternoon to all of you. This is Ashanada, your social science teacher. So, class, today we all are going to continue our chapter number 5 of your history book. The name of the chapter is Rulers and Building. So, class, in our last class, we started this chapter. We have seen how rulers created different types of structures, and after that we also seen how kings and officers built different kinds of structures. Especially they built two kinds of structure. First one for their luxurious life and for their comfortness, and the second one for the public activities. Okay, now after that we have seen the superstructure part. We talked about two types of architectural styles. First one is the trabete or corbelled, or you can trabete or corbelled, and the second one is the arcuate. Okay, so now just take some let's have yes, let's discuss about temple construction in the early 11th century. Open page number 62 of your book. Temple construction in the early 11th century. The Kandaria Mahadev temple dedicated to Shiva was constructed in 999 by the king Dhanga Deva of the Chandala dynasty. This is Kandaria Mahadev temple, and it was constructed by the king Dhanga Deva of the Chandala dynasty. Figure 3b is the plan of the temple. An ornamented gateway led to an entrance and the main hall, Mahamandapa, where dances were performed. Just look at this figure 3b. This is the प्लांट स्ट्रक्चर. ठीक है, ये अंदर से इसका जो इंटीरियर है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है. एंड ऑर्नामेंटेड गेटवे ऑर्नामेंट्स आपकी ज्वेलरीज होती है, ठीक है, या फिर ज्वेल्स का यूज किया हुआ होता है. तो बहुत ही ब्यूटीफुल गेटवे है, इसका एंट्रेंस है, उसके बाद मेन हॉल आ जाता है जिसे हम महामंडपा बोलते हैं. ये वाला जो है ये महामंडपा है. यहाँ पे डांसेस वगैरह परफॉर्म किए जाते थे. The image of the chief deity was kept in the main shrine, Garbhagriha. This is Garbhagriha. This is Garbhagriha and यहाँ पे हमारे जो मेन डाइटी है, जो भगवान की मूर्ति है, इसको रखा जाता था. This was the place for ritual worship where only the king, his immediate family and priest gathered. ठीक है, अब ये जो एरिया है यहाँ पे सबको एंट्री नहीं थी. यहाँ पे खाली जो किंग थे या फिर उनके क्लोज फैमिली मेंबर्स थे या फिर जो पुजारी वगैरह थे वो ही यहाँ पे इकट्ठा हुआ करते थे. The Khajuraho complex contained royal temples where commoners were not allowed entry. The temples were decorated with elaborately carved sculptures. देखिए sculptures, देखिए carved मतलब कि बहुत ही अच्छे से इसको क्या है, इसके अंदर नक्काशी की गई है, बहुत ही सुंदर. आप देख रहे हो कितना कैसे कर्व्स वगैरह में कट किया हुआ है, स्टोन को कट किया हुआ है. तो बहुत ही ब्यूटीफुली इस टेम्पल को बनाया गया है. फिगर 4 ये देखिए, दिस इज राजा राजेश्वरा टेम्पल. The Raja Rajeshwara temple at Thanjavur had the tallest shikara amongst temples of its time. Constructing it was not easy because there were no cranes in those days, and the 90-ton stone for the top of the shikara was too heavy to lift manually. So the architects built an inclined path to the top of the temple, placed the boulder on rollers and rolled it all the way to the top. The path started more than 4 kilometers away so that it would not be too steep. This was dismantled after the temple was constructed, but the residents of the area remembered the experience of the construction of the temple for a long time. Even now, a village near the temple called Charupalam, the village of the incline. अब देखिए ये जो राजा राजेश्वरा टेम्पल है, यहाँ पे ये जो टेम्पल आप देख रहे हो, ये वाला जो ये एरिया जो है, यहाँ पे 90 टन का जो है आपका स्टोन जो है पुट किया गया है. ठीक है, शिकारा क्या होता है? शिकारा का मीनिंग होता है
it means a boat, or you can say शिकारा means boat, or you can say house boat बोल सकते हो, ठीक है, तो वो होती है शिकारा। तो राजेश्वरा टेम्पल जो है यहाँ हैड द टॉलेस्ट शिकारा अमंग्स टेम्पल। शिकारा एक तो बोट को भी बोलते हैं, और एक बोलते हैं कि ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, इसको हम शिकारा बोलते हैं। तो ये जो एरिया है, ठीक है, अब थांजावुर का जो ये इसका थांजावुर का जो ये टेम्पल है, राजा राजेश्वरा टेम्पल, यहाँ पे सबसे टॉलेस्ट टेम्पल है। और इसको कंस्ट्रक्ट करना इट वाज नॉट दैट इजी, बिकॉज एट दैट टाइम देयर वाज नो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेन्स, ठीक है। आज के टाइम पे तो अगर जाना है, ठीक है, ऊपर की तरफ कुछ कंस्ट्रक्ट करना, वी हैव क्रेन्स, वी हैव दिस फैसिलिटी ऑफ क्रेन्स, बट एट दैट टाइम नो क्रेन्स वर देयर। एंड 90 टन स्टोन को शिकारा के ऊपर रखना, वो भी इतना हैवी, ये वाला शिकारा है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे स्टोन को रखना, दैट वाज नॉट अ इजी जॉब। सो जो आर्किटेक्ट्स थे, जो डिजाइनर्स थे, उन्होंने एक इंक्लाइंड पाथ क्या किया था, बिल्ड किया था, इंक्लाइंड पाथ बिल्ड किया था, जिससे कि वो टॉप ऑफ द टेम्पल तक जो पहुंच सके, और बोलर्स प्लेस द बोल्डर ऑन रोलर्स एंड रोल्ड इट ऑल, ठीक है। इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे ऐसे एक पाथ बिल्ड किया था उन्होंने, ऐसे इंक्लाइंड पाथ बिल्ड किया था टेम्पल्स तक, ठीक है, और उसको रोल कर करके उसको वहां पे इस टेम्पल तक वो लेके गए थे, ठीक है, प्लेस किया था। आफ्टर दैट उस जो पाथ था उसको उन्होंने क्या कर दिया था, उसको तोड़ दिया था, डिसमेंटल कर दिया था। पर जो रेसिडेंट्स हैं वहां के एरिया के, उन्हें ये एक्सपीरियंस बहुत मतलब अच्छी तरीके से याद है। इवन जो चारूपलाम है उसको बोला भी जाता है विलेज ऑफ द इंक्लाइन, वहीं के पास में एक विलेज है, विलेज ऑफ इंक्लाइन। इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लाइन? इंक्लाइन का मतलब होता है समथिंग which is disposed, or you can say something which is slanting, ठीक है, slant को बोलते हैं, ओके, झुका हुआ। Now just look at the next topic, building temples, mosques and tanks. Now temples and mosques were beautifully constructed because they were places of worship. They were also meant to demonstrate the power, wealth and devotion of the patron. Take the example of the Raja Rajeshwara temple. An inscription mentions that it was built by King Raja Rajadeva for the worship of his god Raja Rajeshwara. Notice how the names of the rulers and the god are very similar. The king took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like a god. Through the rituals of worship in the temple, one god, Raja Rajadeva, honored another, Raja Rajeshwara. Now, at that time, temples and mosques were beautifully constructed. Why? Because they were the places of worship. Many people go there to worship the god. So that's why what they did, they constructed temples and mosques so beautifully. Okay, and even to demonstrate, to show the power, wealth and devotion of the patron. What is the meaning of patron? Patron means a wealthy person, ठीक है, a wealthy person who contributed in making of the construction of temple. He wanted to demonstrate its power, उसकी wealth, उनका जो devotion है उसको क्या है, demonstrate, show करना चाहते थे, इसलिए भी वो क्या करते थे, ये temple और mosque को बहुत ही beautifully बनाते थे। एक example है राजा राजेश्वरा temple का। यहाँ पे inscription में ये बहुत ही clearly mention किया गया है कि it was built by King Raja Rajadeva, जो for the worship of his god, उनके जो god है राजा राजेश्वरा, उनके worship के लिए इनकी वर्शिप के लिए राजा राजा देवा ने क्या किया है, ये
राजा राजा देवा ने ये टेम्पल बनवाया है। अब देखिए राजा राजेश्वरम और राजा राजा देवा दोनों के नाम में कितनी सिमिलैरिटी है। तो ये सिमिलैरिटी किस वजह से है? बिकॉज इट वॉज ऑस्पिशियस एंड ही वांटेड टू अपीयर लाइक अ गॉड, कि बहुत ही पवित्र बहुत ही प्योर माना जाता है जब आपका नाम जो है गॉड के नेम पे होता है, और इवन जब ये एकदम भगवान की तरह भी लगता है। राजा राजा देवा जो है अपने आप को भगवान की तरह भी मानते थे, तो इसलिए ये जो नेम है राजा राजा देवा, उनका नेम जो है राजा राजेश्वरम से आया है। थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड राजा राजा देवा ऑनर्ड अनदर राजा राजेश्वरम। Okay, so the largest temples were all constructed by kings. जितने भी largest temples थे वो कौन construct करते थे? वो kings construct करते थे। The other lesser deities in the temple were gods and goddesses of the allies and subordinates of the rulers. जितने भी लार्जेस्ट टेम्पल्स थे वो किंग्स कंस्ट्रक्ट करवाया करते थे। जितने भी लेसर डाइटीज क्या होती है? जो मूर्तियां वगैरह होती है गॉड वगैरह की, उनको बोलते हैं। जो आपने टेम्पल वगैरह में गए हो तो जैसे सपोज गणेश जी का टेम्पल है, तो साथ में ऐसा नहीं है कि खाली गणेश जी की मूर्ति होती है, आप देखते हो साथ में साइड में और भी दूसरे डाइटीज और भी दूसरी मूर्तियां भी लगी हुई होती है। तो जो और भी डाइटीज गॉड और गॉडेसेस की उनकी जो मूर्तियां थी उनको भी क्या है रूलर्स पुट करवाते थे। टेम्पल वॉज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। मिनिएचर मतलब किसी भी चीज का एक छोटा रूप जो होता है उसको हम मिनिएचर बोलते हैं। The temple was a miniature model of the world ruled by the king and his allies. Miniature model है जिसको रूल कौन करता है? उसको किंग और उसके जो allies हैं, उसके जो members हैं, वो क्या करते हैं? रूल करते हैं। As they worshipped their deities together in the royal temples, it seemed as if they brought the just rule of the gods on earth. और जब भी वो पूजा अर्चना किया करते थे, गॉड का वर्शिप किया करते थे टेम्पल में, रॉयल टेम्पल में, तो ऐसा लगता था कि वो भगवान को धरती पे लेकर आ रहे हैं। Muslim sultans and padshahs did not claim to be incarnation of God, but Persian court chronicles described the sultan as the shadow of God. जितने भी मुस्लिम सुल्तान थे या जो बादशाह थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भगवान के रूप है, वी आर द इंकारनेशन ऑफ गॉड, या फिर हम जैसे हम कोई भी भगवान का एक इंकारनेशन है, गॉड है। वो इंस्टेड ये बताया करते थे। पर्शियन कोर्ट की जो क्रॉनिकल्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं सुल्तान को ऐसा शेडो ऑफ गॉड, की भगवान की परछाई है सुल्तान। और जो कुआतुल इस्लाम मॉस्क है वहां पे ये क्लियरली इंस्क्राइब किया गया है। इंस्क्राइब मतलब जब आप स्टोन्स पे कोई स्क्रिप्ट या कोई मैसेज लिखते हो तो उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, स्टोन्स पे, वॉल्स पे, ठीक है। कुआतुल इस्लाम मॉस्क में क्लियरली मेंशन एक्सप्लेन किया गया है कि जो अलाउद्दीन है उसको भगवान ने चूज किया है एज ए किंग बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज ऑफ मोसेस एंड सोलोमन। मोसेस एंड सोलोमन जो थे वो ग्रेट लॉ गिवर्स थे, उनकी क्वालिटी है अलाउद्दीन के अंदर। The greatest lawgivers and architect was God himself। और जो greatest आपके लॉ गिवर है या फिर जो आर्किटेक्ट है, हमारे धरती के जो निर्माण करता है, वो कौन है? वो गॉड भगवान स्वयं है, भगवान खुद है। उन्होंने इस वर्ल्ड को बनाया है और ही इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डर एंड सिमेट्री, ठीक है। ये जितने भी हमारे जीने मतलब कि ये जो हमारा जो बर्थ है, डेथ है, इस ऑर्डर को भी किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। Just look at this figure. This is the figure of जामा मस्जिद जो शाहजहां ने बनवाया था, और ये आपके कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, ये दिल्ली में है। Plan of the Jami Masjid built by Shahjahan in his new capital at Shahjahanabad 1650 to 1656। At that time शाहजहांबाद ये मस्जिद है, जामी मस्जिद जो है, उस टाइम पे उस टाइम में जो दिल्ली है उसको शाहजहांबाद बोला जाता था, ठीक है। तो शाहजहांबाद में ये जामी मस्जिद बनवाया था।
Next, as each new dynasty, what is the meaning of dynasty? Dynasty means when a generation that ruled by one single family members, ठीक है, जब बैक टू बैक एक ही फैमिली के मेंबर्स जो है रूल करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम डायनेस्टी बोलते हैं। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो राजवंश भी बोला जाता है, राजवंश हो गया, ठीक है, सीरीज ऑफ रूलर्स हु आर फ्रॉम द सेम फैमिली, इसको हम बोलते हैं डायनेस्टी। As each new dynasty came to power, kings wanted to emphasize their moral right to be rulers. Constructing palaces, places of worship provides rulers with the chance to proclaim their close relationship with God, especially important in an age of rapid political change. Rulers also offered patronage to the lord and peers and tried to transform their capitals and cities into great cultural centers that brought fame to their rule and their realm. अब देखिए जितने भी रूलर्स थे वो पैट्रोनेज वो क्या करते थे? वो पैट्रोनेज ऑफर किया करते थे। पैट्रोनेज का मतलब क्या होता है? पैट्रोनेज का मतलब होता है आपका कि सपोर्ट, ठीक है, स्पेशली फाइनेंशियल सपोर्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं पैट्रोनेज। और टू द लर्न एंड पीयर्स, पीयर्स लर्न मतलब कि जो बहुत समझदार होते हैं, जिनको कोई स्किल्स आते हैं। पीयर्स का मतलब होता है, पीयर्स का मतलब भी यू कैन से जो काफी रिलीजियसली, काफी रिलीजन में काफी बिलीव करते हैं, उनको पीयर्स बोलते हैं। सो जो पैट्रोनेज जो है लर्न और पीयर्स को क्या करते थे? बहुत सारे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया करते थे और कैपिटल्स को ट्रांसफॉर्म किया करते थे, कल्चरल सेंटर्स बनाया करते थे, जिससे कि उनको क्या है, एक फेम मिले, एक नाम मिले कि इनके रूल में क्या हुआ था, ये सारी चीजें हुई थी, इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया था, इतना डेवलपमेंट हुआ था। देयर रूल एंड रेल्म, रेल्म मतलब कि क्षेत्र होता है, रीजन होता है, रेल्म। It was widely believed that the rule of a just king would be an age of plenty when the heavens would not withhold rain. At the same time, making precious water available by constructing tanks and reservoirs was highly praised. Sultan Iltutmish won universal respect for constructing a large reservoir just outside Delhi Kumna. It was called the Hazi Sultani or the King's Reservoir. So can you find it on map 1 in chapter 3? Rulers often constructed tanks and reservoirs, big and small, for use by ordinary people. Sometimes these tanks and reservoirs were part of a temple, mosque or a gurudwara. अब देखिए इट वॉज वाइडली, बहुत ही ऐसा माना जाता था जो भी किंग होते हैं वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन द हेवंस वुड नॉट विदहोल्ड रेन, कि अगर जब बारिश नहीं होती है या फिर हम जो किंग है वो क्या करते थे, प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे रेजर्वॉयर्स, टैंक्स वगैरह बनाया करते थे भगवान, और स्पेशली ऐसी जगह पे ये रेजर्वॉयर्स या वाटर टैंक्स बनते थे जहाँ पे वर्शिप हुआ करता था, ठीक है। तो सुल्तान इल्तुतमिश जो है उनको यूनिवर्सली इस चीज के लिए काफी रिस्पेक्ट मिली थी कि उन्होंने एक दिल्ली कुहना, हौस खास जो आज प्रेजेंट है हौस खास है दिल्ली में, वहां पे एक दिल्ली कुहना उन्होंने बनाया था और इसको हौजे सुल्तानी बोला जाता था, और इसका मतलब है किंग्स रेजर्वॉयर, राजा का जो है ये रेजर्वॉयर है, ठीक है। सो रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रेजर्वॉयर्स, छोटे बड़े रेजर्वॉयर्स बनवाते थे ऑर्डिनरी पीपल के लिए। इवन टैंक्स हो गए, रेजर्वॉयर्स हो गए, ये टेंपल के, मॉस्क के, गुरुद्वारा के भी पार्ट हुआ करते थे, जिससे कि लोग ऑर्डिनरी पीपल भी क्या कर सके, वहां पे जाके वाटर उनको अवेलेबल हो सके, ठीक है। सो देखिए the importance of water. The Persian terms abad, populated, prosperous, and abadi, flourishing, are both derived from the word ab meaning water. अब मतलब होता है water, ये पर्शियन टर्म है abad, ठीक है। populated, prosperous और abadi, abadi हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या, आबादी है मतलब पॉपुलेशन को हम आबादी बोलते हैं। तो ये जो प्रॉस्परस हो गया, फ्लरिशिंग, ये दोनों ही डिराइव जो है अपवर्ड से डिराइव हुए हैं, जिसका मीनिंग क्या है, वाटर।
क्योंकि अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन को वाटर की भी जरूरत होगी, तो उन्होंने उस चीज से कनेक्ट करते हुए क्या किया है, ये टर्म निकाला है। नाउ जस्ट लुक एट दिस फिगर, दिस इज द पिक्चर ऑफ अमृतसर गोल्डन टेम्पल, हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल है, एंड विद द होली सरोवर टैंक इन अमृतसर। ये देखिए ये होली सरोवर है वहां का। नाउ जस्ट लुक एट पेज नंबर, ये देखिए पेज नंबर आप 63 देखिए, एक पिक्चर दे रखी है यहाँ पे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए क्या कर रखा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लोग ये बना रहे हैं, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो a painting from the Akbarnama showing the construction of the water gate at the Agra Fort। आगरा फोर्ट में जो वाटर गेट बन रहा था उसका कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है, और अकबरनामा में इसकी ड्राइंग भी हमें देखने को मिलती है। Now नेक्स्ट टेम्पल इज व्हाई वर टेम्पल्स टारगेटेड। टेम्पल्स को क्यों टारगेट किया जाता था, टेम्पल्स को क्यों डिस्ट्रॉय किया जाता था? बिकॉज किंग्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम दे ऑफन टारगेटेड दीज बिल्डिंग्स। In the early 9th century, when the Pandya king Srimara Shivallabha invaded Sri Lanka and defeated the king Sena I, the Buddhist monk and chronicler Dhammakitty noted he removed all the valuables. The statue of the Buddha made entirely of gold in the Jewel Palace, and the golden images in the various monasteries, all these he seized. The blow to the pride of the Sinhalese ruler had to be avenged, and the next Sinhala ruler Sena ordered his general to invade Madurai, the capital of the Pandyas. The Buddhist chronicler noted that the expedition made a special effort to find and restore the gold statue of the Buddha. अब देखिए ऑब्वियसली टेम्पल्स के थ्रू जो राजा वगैरह थे वो क्या कर रहे थे, वो अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को, अपने डिवोशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे। तो कोई भी अगर अटैक करेगा तो एनिमी अटैक भी वहीं पे करेगा ना जहाँ पे उनको किंग, जैसे कि जो ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हुआ करती थी, टेम्पल्स, मॉस्क वगैरह, तो वो ऐसी जगह पे ही अटैक किया करते थे। तो 9th सेंचुरी में जो पांड्या किंग थे श्रीमरा श्रीवल्लभा, उन्होंने श्रीलंका को इन्वेड किया था और वहां के जो राजा थे सेना वन, उनको हरा दिया था। तो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे और क्रॉनिकलर थे। क्रॉनिकलर कौन होते हैं? क्रॉनिकलर मींस जो क्रॉनिकल्स वैसे हिस्ट्री को बोलते हैं, और जो हिस्ट्री लिखते हैं तो धम्माकित्ती वो भी क्या थे? क्रॉनिकलर थे, वो हिस्ट्री लिखते थे, इतिहास लिखते थे। तो उन्होंने लिखा कि धम्माकित्ती ने नोट किया कि जितने भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव कर दिया गया है। जो बुद्धा का स्टैच्यू है वो पूरा ज्वेल पैलेस में गोल्ड से बना हुआ है, एंड द गोल्डन इमेजेस इन द वेरियस मोनेस्ट्रीज, ऑल दीज ही सीज। जो भी ये गोल्डन इमेजेस वगैरह है मोनेस्ट्रीज में, उसको भी सीज कर दिया गया है, कब्जे में ले लिया गया है। तो इससे जो सिन्हालीज थे, सिन्हालीज कौन होते हैं? श्रीलंका की जो नेशनल लैंग्वेज है वो सिन्हाला है, ठीक है। तो जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं उनको सिन्हालीज बोलते हैं। तो उनके प्राइड को, प्राइड मतलब अब उनका जो आत्मविश्वास था, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, डिग्निटी थी, वो क्या हो चुकी थी? वो टूट चुकी थी। और रिवेंज लेने के लिए सिन्हालीज रूलर ने, सिन्हालीज रूलर के जो नेक्स्ट रूलर थे सेना को, उन्होंने अपने जनरल को क्या किया? ऑर्डर किया कि मदुराई में आप क्या कीजिए? इन्वेड कीजिए, और पांड्या की जो कैपिटल है मदुराई, उसको इन्वेड कीजिए। तो बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर ने ये चीज देखी कि नोटिस दैट द एक्सपीडिशन मेड अ स्पेशल एफर्ट। एक्सपीडिशन क्या होता है? जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और मूव करके देखने की कोशिश करते हैं कि किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए जब एक लॉन्ग जर्नी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपीडिशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक्सपीडिशन मतलब कि ये जर्नीज कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी थी उनके अकॉर्डिंग।
जो बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर थे, ये धम्मागित्ते, उनके अकॉर्डिंग की एक्सपीडिशन जो है, ये जर्नी जो है बहुत ही स्पेशल एफर्ट लगाएगी जिससे कि हम अपनी गोल्ड स्टैच्यू को रिस्टोर कर सकें बुद्धा की। ठीक है। Next, similarly, the early 11th century, when the Chola king Rajendra I built a Shiva temple in his capital, he filled it with prized statues seized from defeated rulers. An incomplete list included a sun pedestal from the Chalukyas, a Ganesha statue, and several statues of Durga, a Nandi statue from the eastern Chalukyas, an image of Bhairava and Bhairavi from the Kalingas of Odisha, and a Kali statue from the Palace of Bengal. अब 11th सेंचुरी में जो चोला किंग थे राजेंद्र वन, उन्होंने शिवा टेम्पल जो है बिल्ड करवाया था, ठीक है, उनके ही कैपिटल में, और जितने भी उनके प्राइज स्टैच्यूज थे, जिनको जो भी डिफीटेड रूलर्स थे, ठीक है, जिनको उन्होंने हराया बैटल में, वहां के जो भी उन्होंने स्टैच्यूज वगैरह लिए, उन सबको शिवा मंदिर में क्या किया, उन्होंने स्थापित कर दिया था। जैसे कि चालुक्यास का एक सन पेडेस्टल था, गणेश स्टैच्यू हो गए, और भी दुर्गा माता की बहुत सारी स्टैच्यूज, नंदी स्टैच्यू फ्रॉम द ईस्टर्न चालुक्यास, भैरवा और भैरवी के स्टैच्यूज, उड़ीसा भैरवा भैरवी, और बंगाल पलाश ऑफ बंगाल से काली का स्टैचू, ये सब जो है उन्होंने उस शिवा टेम्पल में रखवाया। अब एक सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी was a contemporary of Rajendra I. During his campaigns in the subcontinent, he attacked the temples of defeated kings and looted their wealth and idols. Sultan Muhammad was not a very important ruler at that time, but by destroying temples, especially the one at Somnath, he tried to win credit as a great hero of Islam. In the political culture of the Middle Ages, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the palaces of places of worship and defeated rulers. अब देखिए सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी जो थे, he was considered as contemporary. What is the meaning of contemporary? Contemporary means you can say उसी टाइम से, belonging to the same time, राजेंद्र वन के टाइम से ही थे, ठीक है, और उनके कैंपेन्स के थ्रू जब वो सब कॉन्टिनेंट पे अटैक कर रहे थे, टेम्पल्स पे अटैक कर रहे थे, तो जितने भी राजाओं को उसने डिफीट किया था, उन्होंने वहां के आइडल्स को लूट लिया था, वहाँ के जो धन था, वहाँ की जो वेल्थ थी, उनको उन्होंने लूट लिया था। और सुल्तान मोहम्मद जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर तो नहीं थे उस टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर नहीं थे उस टाइम के, बट जैसे ही उन्होंने सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया, और वो क्या करना चाह रहा था उस टाइम पे, वो इस्लाम का बहुत ही बड़ा हीरो बनना चाह रहा था। So, in the political culture of the Middle Ages, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the palaces of worship of defeated rulers. सब क्या किया करते थे? जो वर्शिप प्लेसेस थी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उन पे अटैक करने की कोशिश करते थे और रूलर्स को डिफीट करने की कोशिश किया करते थे। ये देखिए फिगर 9, देखिए मुगल चाहर बाग, द चाहर बाग इन हुमायूं टॉम दिल्ली। ये देखिए ये सारे डिजाइन्स हैं, ये चाहर हुमायूं टॉम का जो है चाहर बाग जो है हुमायूं टॉम का। टेरेस चाहर बाग एट शालीमार गार्डन कश्मीर। फिर देखिए द चाहर बाग अडेप्टेड एज अ रिवर फ्रंट गार्डन एट लाल महल बाड़ी। चलो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।